بلٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس بے قابو، 5 ماہ بعد کورونا سے ایک دن میں سب سے زیادہ 89 اموات، کل تعداد 8487 ہو گئی۔ 2885 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 8.58% ہو گئی۔ سب سے زیادہ کراچی میں 21.80% کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کرونا کی یلغار، ایک دن میں 5 ماہ کی سب سے زیادہ اموات۔ 24 گھنٹے میں کرونا سے 89 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 8487 ہو گئی۔ 33,610 کورونا ٹیسٹ میں سے 2,885 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ NCOC کے مطابق مثبت کیسز کی مجموعی شرح 8.58% رہی۔ سب سے زیادہ مثبت کیسز کراچی میں 21.80 ریکارڈ ہوئے۔ حیدرآباد میں یہ شرح 9.15% ریکارڈ کی گئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں مثبت کیسز 18.31%، آزاد کشمیر میں 9.77% ہے۔ پشاور 14.91%، خیبر پختونخوا میں 9.67% ہے۔ ایبٹ میں کرونا کے پھیلاؤ کا تناسب 13.35% ہے۔ بلوچستان میں یہ شرح 8.68% رہی۔ کوئٹہ میں 4.81% ہے۔ سوات میں مثبت کیسز کی شرح 4 سے زائد، اسلام آباد 4.88، لاہور میں 5.98، راولپنڈی میں 8.51، فیصل آباد میں 3.73 اور ملتان میں 2.38% ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کرونا کی دوسری لہر زیادہ خطرناک ہے، مگر ایسی نہیں کہ اسے کم یا ختم نہ کیا جا سکے۔ اداروں محکموں کے سربراہ SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ حفاظتی اقدامات سے ہی کرونا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لہر ہے، اس میں ہم بیماری کا پھیلاؤ بھی دیکھ رہے ہیں اور ایسی جگہوں میں بھی اس کا پھیلاؤ دیکھ رہے ہیں جہاں پہلی لہر میں شاید اس کا اتنا زور نہ تھا۔ زندگیوں کو، معیشت کو، تعلیمی نظام کو شدید طور سے امپیکٹ کر سکتی ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ وبا خطرناک ہے، یہ ایسی نہیں جس کو کہ روکا نہ جا سکے۔ گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں، ہاتھوں کو دھوئیں، فاصلہ رکھیں، جم والی جگہ میں نہ جائیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ جیسے پہلی لہر کو ہم مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے تھے تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم اس دوسری لہر کو بھی نیچے لانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ انتظار ختم ہوا، برطانیہ میں ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق شمالی آئرلینڈ کی 90 سالہ خاتون کو ویکسین لگا دی گئی۔ امریکی کمپنی فائزر کی ویکسین پہلے ہفتے میں 8 لاکھ افراد کو لگائی جائے گی۔ برطانوی حکومت کے مطابق سب سے پہلے ویکسین ہیلتھ ورکرز اور بڑی عمر کے افراد کو لگائی جائے گی۔ ویکسین کی 2 خوراک لگیں گی، ویکسینیشن کارڈ ملے گا۔ برطانیہ ویکسین کے استعمال کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کی ریلی، اشتعال انگیز تقاریر اور سڑک بلاک کرنے کے الزامات پر نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ نون لیگ کے اراکین اسمبلی اور رہنماؤں سمیت 600 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ دوسری FIR کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر تھانہ بادامی باغ میں درج کی گئی۔ لاہور میں مسلم لیگ نواز کی ریلی، اشتعال انگیز تقاریر، سڑک بلاک کرنے کے الزامات، نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ مریم نواز کے خلاف مقدمہ تھانہ شادرہ میں پٹواری محمد عابد کی مدیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں ساؤنڈ ایکٹ، روڈ بلاک اور اشتعال انگیز تقاریر سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمے میں اراکین اسمبلی ملک ریاض، سمیع اللہ، مریم اورنگزیب اور طلال چودھری سمیت 45 رہنماؤں کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں 500 سے 600 نامعلوم افراد بھی نامزد ہیں۔ دوسرا مقدمہ تھانہ بادامی باغ میں پٹواری جہانزیب کی مدیت میں درج کیا گیا، جس میں کورونا SOPs، ساؤنڈ ایکٹ، اشتعال انگیز تقاریر کی دفعات شامل ہیں۔ سعید خان، محمد شہزاد اور 100 سے 150 نامعلوم لیگی کارکنان نامزد ہیں۔ اتنے پرچے کٹ گئے ہیں، اب کوئی خوف نہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ حکومت خود جانے والی ہے، اس کی FIRs کہیں سٹینڈ نہیں کرتی۔ کسی کی گرفتاری سے اب یہ تحریک ختم نہیں ہوگی۔ تحریک کی قیادت عوام کریں گے، حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے۔
लोग तंग आए हुए हैं महंगाई से, जिस तरह लोग बेरोजगारी से, लाकानूनियत से तंग आए हुए हैं, इस हुकूमत की नाअहली से और इस हुकूमत की नालायकी से तंग आए हुए हैं, वो लोग PDM में और नवाज शरीफ में अपनी निजात देख रहे हैं। इस हुकूमत की जान निकली हुई है लाहौर के जलसे से। मुल्तान के जलसे में भी इन्होंने यही किया था, गुजरांवाला के जलसों में भी इन्होंने यही किया था। कभी आपने सुना है कि एक जलसे में 3,000 2200 FIR कटी हो? कभी देखा है? इतनी FIR काटी है कि FIR का खौफ ही नहीं है। हुकूमत अब खुद जाने वाली है तो इसकी FIR कोई कहीं स्टैंड नहीं करती। तहरीक है, इसको आवाम लीड करेंगे इंशाल्लाह। ये आवाम की रिलीफ की तहरीक है, ये उनको मुश्किलात से निकालने की तहरीक है। मरियम नवाज हो या कोई और हो, इंशाअल्लाह ताला अब ये तहरीक ख़त्म नहीं हो सकती। ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को घर भेज के दम दे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान और मरियम सफदर बेरोजगार हो चुके हैं। इनको पता है कि इमरान खान की हुकूमत रही तो करप्शन का मौका नहीं मिलेगा, अपोजिशन को NRO मिलेगा, ना ही सियासी शहीद होने देंगे। फजल रहमान और मरियम सफदर वो बंद गली में है, इनके लिए ये डू एंड डाई है। अगर इमरान खान जो है उनकी हुकूमत कंटिन्यू रही तो मुल्क के अंदर इनको मजीद करप्शन करने का मौका नहीं मिलना। पहले कोरोना में मुल्क की माशत तबाह करने की कोशिश की, जो ये अल्लाह के हुक्म से नाकाम हुए। अब ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये कुछ भी करना चाहते हैं फ्रस्ट्रेशन में। ना इन्हें NRO मिलेगा और ना ही हम इन्हें सियासी शहीद होने का मौका देंगे। वो सियासी हथकंडे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, जो कानून हाथ में लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन इन्हें जलसा करने से नहीं रोका जाएगा। तो इनको डंडे और झंडे बताने की जरूरत नहीं है, तो ये डंडे और झंडों के ऊपर ना चढ़ के बैठें, ये बंदे ढूंढें जो कि इनको नहीं मिलते। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि आज करप्ट माफिया के ताबेदार इजलास में लूटी दौलत के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में शर अंगेज़ी के एजेंडे पर गौर किया जाएगा। ख़ानदानी मफाद में जकड़े आवाम की ज़िंदगियों से खेलने का मंसूबा बनाएंगे। हर बार इक़्तिदार की बारी लेने वालों को आवाम की बारी पसंद नहीं आ रही। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। कोरोना केसेस और अमवात में शिद्दत आ रही है। 24 घंटे में कोरोना से 89 अमवात हुई हैं। ऐसे में अपोजिशन की हरकत जलती पर तेल और जलसे करना लोगों के कत्लेआम के मुतरादिफ है। उन्हें सिर्फ अपनी चोरी बचानी है, चाहे लोगों की जानें चली जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में PDM का लाहौर जलसा रुकवाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत पंजाब और DC लाहौर को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी मुआवनत मांग ली। अदालत ने करार दिया कि अदालत किस कानून के तहत ऐसे जलसों को रोकने का हुक्म दे सकती है। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, ऐसे में वो कैसे अदालत आ सकता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि हर जगह जिस तरह का मजमा इकट्ठा हो रहा है, क्या वो SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं? हुकूमत ने क्या पॉलिसी बनाई है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। SOPs पर अमल दरामद करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाहौर में अवाम ने मरियम नवाज को मामू बना दिया। 50 रुपए के जाली नोट निछावर किए और जाली नोट मरियम नवाज पर शादबाग से शादरा जाते हुए निछावर किए गए। लोग जाली नोट असली समझकर लूटते रहे। जाली नोट MNA मलिक रियाज की छत से निछावर किए गए। मरियम ने नोट निछावर किए जाने का ट्वीट कर दिया। लिखा कि लाहौर में लोग सिर्फ फूल ही नहीं, पैसे भी फेंकते हैं। मरियम के फ़ोन जाली, नुमाइंदों के नोट जाली, अब्बा जी के रिपोर्ट जाली, चचा के सबूत जाली। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने अपने ट्वीट में कहा कि उनकी सारी सियासत का रूट जाली है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने भी इजाफा किया और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊँट जाली, कतरी शहजादे जाली, ट्रस्ट डीड जाली। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। वकील की अदम पेशी पर अदालत बरहम, रिमार्क्स दिए कि अगर आज जरा नहीं हुई तो हक खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। अदालत ने केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ का बेटे सलमान शहबाज से टेलीफोनिक राब्ता। सलमान शहबाज ने वालिद और हमजा शहबाज की खैरियत दरियाफ्त की। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं तमाम हुकूमती रिकॉर्ड वज़ीर आज़म की कस्टडी में है। शहबाज शरीफ की फाइलें उनकी टेबल पर हैं। उनकी टेबल पर आवाम को रिलीफ देने की कोई फाइल नहीं।
2.5 साल गुजरने के बावजूद तमाम हुकूमती रिकॉर्ड हुकूमत के पास इमरान साहब की कस्टडी में होने के बावजूद, क्योंकि फाइलें सारी इमरान साहब शहबाज शरीफ की अपनी टेबल पर रखते हैं, इमरान साहब की टेबल पर अवाम को रिलीफ देने की कोई फाइल नहीं है। नैब न्याजी गठजोड़ को इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाए। उसकी तरजीह सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ को जेल में डॉक्टर्स तक रसाई नहीं देनी। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगाकर 6 साल से मफरूर, मालम जब्बा में मफरूर, हेलीकॉप्टर में मफरूर, बिलियन ट्री सुनामी में मफरूर, आटा चीनी चोरी में मफरूर, कोई पूछने वाला नहीं। आपने शहबाज शरीफ पे जो इल्जामात लगाने लगाए, अदालत उनको सुर्खरू करेगी इंशाअल्लाह। जैसे सुप्रीम कोर्ट में पिछले दरवाजे से इनके वकील ने दरखास्त वापस ली और भाग गए, लाहौर कोर्ट में भाग गए, एहतसाब की अदालत में भाग गए। हुकूमत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि बात उन इदारों से होगी जो सियासत पर असर अंदाज होते हैं, उनसे बात होगी कि मुल्क कैसे चलाना है। इस्तीफे एक संजीदा ऑप्शन है, ये मामला इस तरह चल नहीं सकते कि ये गवर्नमेंट जो है, ये तो 2018 के इलेक्शन का असर है इस मुल्क पर। यहाँ हुकूमत से बात करना मकसूद नहीं है, ना उसका कोई फ़ायदा है। बात उन लोगों से होगी, उन इदारों से होगी जो मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होते हैं, जिसमें फ़ौज भी शामिल है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जुडिशरी है, और नैब को भी डाल दें। ये बैठ कर डिसाइड कर लें कि मुल्क हमारा इससे आगे कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत का मफरूर सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी और जायदाद जब्त न करने पर बरहमी का इजहार। जायदाद जब्ती में ताख़ीर पर नैब से जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का मुकदमात में ताख़ीर और मफरूर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार। हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने बताया कि हमजा को शहबाज शरीफ का बेनामीदार बनाया गया। नैब ने 110 गवाहों की फहरिस्त दी, सिर्फ 3 के बयानात कलमबंद हो सके। रेफरेंस दायर हुए 1 साल 5 माह हो चुके। अदालत ने सवाल किया कि हमजा शहबाज के केस की बारी कब आएगी, 110 गवाहों के बयान कब तक रिकॉर्ड हो जाएंगे। अदालत के पूछने पर हमजा शहबाज के वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ ने जमानत के लिए रुजू नहीं किया। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि पहले शहबाज शरीफ का ट्रायल होने दें, शहबाज शरीफ बरी हुए तो हमजा भी बरी हो जाएंगे। अदालत ने एहतसाब अदालत में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।